نہیں ہے، فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہے، تو ہمیں اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہیے. تو اب میں درخواست کروں گا مولانا سبطین حسین صاحب سے کہ وہ تفسیر قرآن کے حوالے سے اب اپنا بیان اسٹارٹ کریں. بر محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الصادقین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین. اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صلوات بر محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن حکیم کا سب سے طویل سورہ اس ماہ صیام میں تفسیر کے لیے منتخب کیا گیا، اور ابتدائی طور پہ کوشش کی گئی کہ اس کو سم اپ کیا جائے، مگر شاید ہمارا یہ پورا رمضان سورہ بقرہ کے ساتھ گزرے گا. سورہ بقرہ کو اس کے سبجیکٹس وائز ڈسکس کرنا اور سامعین پہ ان کے نکات کو واضح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم تفسیر کا نام لیں تو پھر تفسیر کو بیان ہونا چاہیے. سامعین محترم، قرآن حکیم کا یہ سورہ کتنا اہم ہے اور اس کی برکات کیا ہیں، اس پر ابتدائی گفتگو رہی، اور اس کے کون کون سے حصے کی تلاوت تعقیبات میں ریکمینڈ ہوئی، اس کا تذکرہ رہا. گزشتہ گفتگو میں ہم نے اس کے اندر موجود ٹاپکس کو، کہ کتنے ٹاپکس سورہ بقرہ میں ہیں، ہم نے ان ٹاپکس کو بریفلی بیان کیا تھا. آج ہم سورہ بقرہ کے آغاز سے گفتگو کریں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ترجمہ دیکھیے تو کیا لکھا ہوگا ہر ترجمہ میں کہ الف لام میم، اس کا ترجمہ بھی الف لام میم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. شک. عجیب آغاز ہے. الف لام میم، جس کا ترجمہ بھی انسانی فکر، کوئی انسانی لغت، کوئی فرہنگ اس کا ترجمہ فراہم نہیں کر سکتی. اور ٹرانسلیشن ویسے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ٹرانسلیشن سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. بے شک یہ صرف قرآن کی زبان کا بدل ہے. یعنی ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ آپ واٹر کا بدل ماء کو لے آئیں، ماء کا بدل پانی کو لے آئیں، مگر حقیقت آب اور حقیقت ماء یا ریئلٹی آف واٹر جو ہے وہ اس ترجمے میں سماتی نہیں جب تک اس کا ادراک نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے جو ہم قرآن حکیم کا ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو صرف لفظوں کا بدل تو فراہم کرتا ہے، لیکن قرآن فہمی جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے مقصد کو، آیتوں کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے، آبجیکٹیوز کو. اور وہ آبجیکٹیوز وہی بتا سکتے ہیں، وہ مفاہیم وہی بتا سکتے ہیں کہ جو اسی بارگاہ سے آئے ہوں جس بارگاہ سے قرآن آیا. سبحان اللہ. کوئی انسانی فکر اپنی رائے سے اگر کوئی مفہوم فراہم کرنے کی کوشش کرے گی تو محمد و آل محمد کے مکتب فکر میں
ایسی تفسیر کو رد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ تفسیریں تو علماء آل محمد نے بھی مفصل لکھی اور ہر سطر تو آل محمد نے بیان نہیں کی، تو یہ جو 20 والیومز میں 30 والیومز میں تفسیریں آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں، ان کی تمام سطریں آل محمد کی تصنیف نہیں ہیں، تو پھر وہاں اس بحث کو یا اس فکر کو یا اس تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جائے گا یا اسے تفسیر معصوم کہا جائے گا؟ کیونکہ قرآن کے لیے اگر 4 فکرے بھی میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں تو ظاہری نگاہ میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی بالرائے گفتگو کر رہے ہیں۔ بالرائے نہیں ہوتی وہ بات جو اصل مفہوم سے جدا نہ ہو۔ مثلا صراط مستقیم، اس کا حقیقی مفہوم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ کہ جو صاحبان نعمت ہیں۔ بے شک۔ اور صاحبان نعمت کی پہچان یہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم پہچاننے کے بعد یہ طے کریں کہ صاحبان نعمت کون ہیں اور ضالین کون ہیں اور مغضوب کون ہیں۔ اب اگر ہم صراط الذین انعمت علیہم میں معصوم سے پوچھنے کے بعد اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ علی کے راستے کو محمد و آل محمد کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اس صراط مستقیم کی وضاحت میں جتنی بھی تفصیلات بیان ہوں گی وہ برائے تفسیر نہیں ہوگی، وہ معصوم کی گفتگو کے سائے میں گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ برائے نہیں، وہ سائے میں۔ بے شک۔ تو اسی ایما سے علماء نے آیات پر، الفاظ پر مباحث لکھے، مگر ہر مکتب آل محمد کے عالم کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کہیں کسی نکتہ کی رازداری کو سمجھانے میں وہ اپنا ذاتی یا اپنے نفس کا پیدا کردہ مفہوم نہ بیان کرے، وہ مفہوم معصوم کے مفہوم سے جڑا ہوا ہو، پھر اس کا پھیلاؤ آپ دوسری آیات کی مدد سے، احادیث کی مدد سے، فلسفہ اسلامی کی مدد سے، منطق کی مدد سے اور فضائل و واقعات کی مدد سے اس پھیلاؤ کو آپ کے سامنے لے کر آتی۔ تو کہیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہاں بالرائے شروع ہوتی ہے تفسیر، صرف پہلے یہ نقطہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جس کے نزدیک صراط مستقیم کوئی اور راستہ ہے اور اس کے بعد چاہے وہ 100 والیومز لکھ دے تفسیر میں، ساری تفسیر بالرائے رہے گی، لیکن جس کے نزدیک صراط مستقیم کی آئیڈینٹی میں، انعمت علیہم کی آئیڈینٹی میں کہیں تفاوت نہیں ہے، تو وہ جتنی بھی تفصیل بیان کرے گا وہ برکت بیان ہے اور اس میں تحمیل نہیں ہے، وہ ساری تعویل بھی کہلائے گی ساری گفتگو، اور وہ ساری تفسیر بھی کہلائے گی۔ تعویل کہتے ہیں کسی چیز کا اول مطلب، اور تعویل کا حق بھی سوائے محمد و آل محمد کے اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وما تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جن کو اللہ کی طرف سے راسخ فی العلم بنا کر بھیجا گیا۔ کسی مدرسے میں بننے والا عالم دوسرے عالم کے ظرف کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حالات مختلف، اذہان مختلف، سورس آف انفارمیشن مختلف، اساتذہ مختلف اور ریفرنسز مختلف، اس لیے جو فکر مدرسے سے حاصل ہوگی اس میں فرق آ سکتا ہے، لیکن جو مدرسہ الہیہ سے پڑھ کے آئے گا اس کی فکر میں کبھی کہیں فرق نہیں آئے گا، چاہے وہ معصوم 14 ہوں چاہے 1,24,000 انبیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے قبلہ، واہ۔ یہ کہ مکتب ایک ہے، فکر ایک ہے، سورس ایک ہے، اور ایک ہی ماحول کے تحت انہوں نے اللہ کے احکام کو سمجھا اور بیان کیا۔ الف لام میم کا اسی لیے ترجمہ ممکن ہی نہیں کہ لوگ کریں کہ یہ اسرار میں سے ہے، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں
28 या 29 सूरों में मुसलसल हरूफ मुक़त्तिआत हैं, यानी तमाम सूरों के अंदर 29 सूरा ऐसे हैं कि जहाँ हरूफ मुक़त्तिआत मिलेंगे। अलिफ लाम मीम रिपीट भी हुआ है, अलिफ लाम मीम फिर रिपीट हुआ है, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या ऐन स्वाद, सुभान अल्लाह, त्वा सीन मीम, अलिफ लाम मीम या सीन स्वाद, हा मीम, हा मीम ऐन सीन काफ। ये कितने, यानी कितने मुकामात पे कुरान हकीम में इस तरह से कलाम, यानी आयत नहीं सूरा शुरू इन हुरूफ से हुआ है, इसलिए इन हुरूफ को हरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। इनका नाम क्या है, टेक्निकल नाम हरूफ मुक़त्तिआत। मीम क़ाफ तोए ऐन अलिफ ता, मुक़त्तिआत, हरूफ मुक़त्तिआत। ये सूरह बकरा, आल इमरान, सूरह अराफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह राद, सूरह इब्राहिम, सूरह हजर, सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह शुअरा, सूरह नहल और कुछ मजीद सूरह, सूरह दखान, याशिया, अहकाफ, सूरह क़ाफ, सूरह कलम, सूरह वन नज्म। सूरह वन नज्म में नहीं है मगर सूरह कलम में। तो ये मुक़त्तिआत हमें सूरह रूम में भी हैं, सूरह लुक़मान में भी हैं, सूरह अनकबूत में भी हैं, सूरह कसस में भी हैं, सूरह नमल में भी, सूरह शुअरा में। तो ये मुक़त्तिआत आए। अच्छा, इन पर आखिर में मैं आपको एक रिवायत दिलचस्पी का सबब होगी और ईमानी बुलंदी का सबब होगी, वो आखिर गुफ्तगू में अर्ज करूंगा, लेकिन पहले इस पर गुफ्तगू कर लूं। इन्हें फ़वातिहुल कुरान भी कहा जाता है। फ़वातिह यानी फतह कहते हैं किसी दरवाजे का खुलना, यानी कुरान के इल्म का या सूरा के इल्म का खुलना। फ़वातिहुल सूरा, जैसे पूरे कुरान को खोलने के लिए सूरह अल-हम्द पहले आता है, तो उसे सूरह फातिहा, फातिहतुल किताब भी कहते हैं। तो ये फतह का लफ्ज जो है ये बाब के खुलने से मंसूब। अब ये देखिए कि हुरूफ वही हैं, हरूफ तहज्जी वही हैं और लफ्ज भी इन्हीं हुरूफ से बनते हैं, मगर तमाम दुनिया के लिटरेचर में ये कमाल पाया जाता है। और फिर बिलखुसूस अगर कुरान का भी एज ए लिटरेचर मुतालिया किया जाए, ईमानी मुतालिया एक पहलू है और कुरान का अदबी मुतालिया ये भी कुरान ही का एक पहलू। अहले अदब के सामने जब आप दुनिया के लिटरेचर के सामने रखेंगे तो जो ईमान नहीं रखते मगर वो कुरान के अदब से जरूर मुतासिर होते हैं, कुरान की लिटरेरी साख्त कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि ले आओ इसके मुकाबिल कोई एक सूरा, तो स्ट्रक्चर में भी अदबी साख्त में भी दूसरा अदब नहीं ला सके कि जो इसका मुकाबला कर सके। यानी ईमान तो नहीं रखते। सूरह कौसर सिर्फ जब इसी का वाक़या पेश आया तो वहां लोगों से ये नहीं कहा गया कि ये जो इसके अंदर मुज़ामीन ईमान के फेत के बयान हुए हैं उनका बदल लाओ, क्योंकि अल्लाह काफिरों से मुशरिकों से गुफ्तगू कर रहा है। तो कहा गया कि इसके मुकाबिल में अगर तुम समझते हो कि ये कलाम, ये स्ट्रक्चर, ये जुमले इंसान ने बनाए हैं तो तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो फसीहुल लिसान शायर और अदीब हो, तुम भी ले आओ। मुअल्लक़ात तुम्हारे तो काबा पे कसीदे लटकते हैं और उर्दू अरबी लिटरेचर का जो तारीखी सफर है वो आज तक उन मुअल्लक़ात कहते हैं को लटकाए जाते थे, इसलिए मुअल्लक़ किए जाते थे काबा की दीवार पे। 7 मुअल्लक़ात, 7 कसीदे हर बरस। तो आज तक लिटरेचर में, आज तक लिटरेचर उनके बगैर अरबी जुबान की तफहीम स्टूडेंट्स को नहीं समझा सकता, हौज़ों में भी पढ़ाए जाते, हालांकि वो काफिरों का लिखा हुआ कलाम। उन शोरा से कहा गया कि आप भी ले आए। तो वो ईमानी तौर पे चैलेंज नहीं था
वो कुरान के अदबी स्टेटस का चैलेंज था कि अदब के मुकाबला में, सिर्फ लफ्जों के मुकाबला में इस तरतीब और इस तासीर वाले लफ्ज ही लाकर दिखा दो तो ये मान लिया जाएगा कि ये बशर का कलाम है, तुम भी ऐसा बना सकते। तो उन्होंने 3 सतरें जब पढ़ी, कौसर फसल रब्बे का वनहर निशानिया का, मजबूर हो गए। नीचे क्या लिखा? ये मा हुआ कलामुल बशर, उसी बहर में लिख दिया। ये सब कुछ हमारे दावे धरे के धरे रह गए। ये 3 सतरें ही ऐसी हैं कि हम कहने पे मजबूर हैं कि ये बशर का कलाम नहीं हो सकता। तो अल्लाह के कलाम का मौजज़ा है कि दुनिया के फसीह तरीन शुअरा हथियार फेंक के कह रहे हैं कि हम तो इन 3 सतरों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कोई ये मत समझे कि कुरान का जो लिटरेचर है या कोई भी अरबी दान इसके मुकाबला में कोई एक जुमला भी बना सकता है। इसकी साख्त ऐसी है, उसके अंदर तासीर ऐसी है, मानवियत ऐसी। लेकिन आप इसकी जो नुक्ता में अर्ज करना चाहता हूँ, आप ये गौर फरमाए, कहीं अल्लाह कुरान हकीम में कस्में उठाता है, वन नज्म वल कमर वल लैल वत्तीन वज़ैतून, ये कस्में। कहीं कलाम को कस्मों से काबिल तवज्जो बनाता है, कहीं मुक़त्तिआत ले आता है, अलिफ लाम मीम, ये कस्में नहीं है, ये मुक़त्तिआत है। कसम फिर भी समझ में आती है किसी हद तक। वन नज्म के कोई खास सितारा है जिसकी कसम उठाएगी। वल लैल, लोगों को पता है कि लैल अल्लाह अपनी तखलीक पर और अपनी तखलीक पर गुफ्तगू कर रहा है और अपनी तखलीक को अपनी सदाकत का गवाह बना रहा है। वल फज्र, वो खास फज्र, तो उस फज्र को अपनी सदाकतों का गवाह बना रहा। कसम क्या है? गवाह बनाना। लेकिन ये अल्लाह का उसलूब क्यों है कि कहीं वो बात करते करते कसम उठाता है, कहीं वो मुक़त्तिआत इस्तेमाल करता है। तो ये अल्लाह कुरान के अदबी असलूब को इतना पुख्ता कर देता है और समझाना ये चाहता है कि हुरूफ वही है। अगर तुम भी मुकाबला में ला सकते होते तो अब तक कितना कलाम कुरान के मुकाबला में आ चुका होता। मगर ये दलील है कुरान के मोजज़ा होने की कि इंसान जुबान और हर्फ पे इतनी कुदरतें और इतने वसाइल रखते हुए कुरान की सूरत के मुकाबला में एक सूरा भी नहीं ला सका, आयत के मुकाबला में एक आयत नहीं ला सका। तो इसलिए मुक़त्तिआत रखे जाते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करें। बिल्कुल इसके रमूज में एक बात है, मैं इसके सारे रमूज अर्ज करता हूं। एक बड़ी वजह यह है कि इसको अल्लाह रखता है कहीं कसम को, कहीं असलूब कसम है, कहीं असलूब मुक़त्तिआत है कि वो इंसान के जिसे बड़ी बड़ी हिकमतें इग्नोर करने की आदत है, वो सुनते सुनते किसी की गुफ्तगू, कोई आयत सुनते सुनते, कोई तफसीर सुनते सुनते, कोई मफहूम सुनते सुनते वो कहीं का कहीं जा पहुंचता है और उसकी सोच कहीं पर मुअतरिज होती है और कहीं पर गैर हाजिर होती है। तो एतराज का रद भी मुक़त्तिआत और कसम से रखा और सोच के गुम हो जाने को वापस लाने के लिए भी अल्लाह मुक़त्तिआत और कसम को कलाम में रखता है। ये महासिन अदब कुरान है और इसके मानवी असरार जो है, ईमानी असरार, वो मैं अभी इसके बाद अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये उसके अदबी असरार कि अल्लाह इंसान को मुतवज्जे करता है। और इसका खुद कुरान हकीम में जिक्र भी हुआ और तारीख में है कि जो कुफ्फारे मक्का थे वो दुश्मनाने कुरान होने के बावजूद जब मुक़त्तिआत को सुनते थे, कोई सूरा हर्फ मुक़त्तिआत से जब आता था तो गुल मचाते मचाते, लावोलाब में मसरूफ शोर मचाते मचाते अचानक जब कान में मुक़त्तिआत के अल्फाज पढ़ते थे, कहीं अलिफ लाम मीम, कहीं अलिफ लाम रा, कहीं हा मीम, तो वो अपने सारे मशागल छोड़ के
चौंक के सुनना शुरू कर देते थे कि ये क्या कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। कुरान हकीम में यानी खुद कुरान हकीम में आयत मौजूद है कि वकालल्लज़ीना कफरू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लबून। वो ये कहते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि जो काफिर हैं ये एक दूसरे से कहते हैं कि कुरान सुनने की जरूरत नहीं, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो शोर मचाओ, गुल मचाओ, इतना गुल करो कि शायद इस तरह से हम गालिब आ जाएं और पैगंबर अपना कलाम और अल्लाह का कलाम जिसे कह रहे हैं उसे पहुंचाने में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा गुल जो है ये लोगों को मुतवज्जे नहीं होने देगा। तो अब देखें, जब फवातिह कुरान आते थे तो रिवायतें बताती हैं कि वो मानने पर मजबूर हो जाते थे ये बात कि चाहे हम नहीं मानते ईमानी तौर पर, मगर ये पहेलियां जो कुरान में बताई जा रही हैं इनका कोई बहुत गहरा मतलब है, और कुछ ऐसा गहरा है कि अगर हम बहुत गौर करें तो शायद हमें कुछ पल्ले पड़ जाए और मजहब दीन इस्लाम का कोई राज हमें मिल जाए। यानी वो इसके इन मुकत्तिआत को अल्लाह का राज और पैगंबर का राज मानते थे और इसलिए राज की बात पे चुप हो जाते थे। अरबों में खुद भी इशाराती लफ्ज राइज थे। मैं अर्ज करूं, ये थोड़ा जिनको ज़ौक़ तफसीर है उनके लिए ये बातें सारी अहम है। यानी कुरान की स्टडी के लिए पहले एक मिजाज डेवलप करना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं वो बातें बताऊं। मसलन अरबों में मुकत्तिआत की तरह कुछ हुरूफ, कुछ लफ्जों के बयान का बदल थे, यानी वो इससे नावाकिफ नहीं थे कि राज की बात, कुछ बातें जिन्हें बतौर राज कहना हो तो पूरा लफ्ज बोलने की बजाय उसका मुकत्ते बोल। माशाअल्लाह। मसलन सूरज से की रोशनी से जो चीजें नजर आती हैं, जो कुछ भी कायनात में, या चश्मा है पानी का जहां चमक पड़ती थी, तो उस हर चीज को अरब ऐन कहते थे। बादल को देखते थे तो गैन कहते थे। इसी तरह पहाड़ को काफ, क्वाफ, ये कोहे काफ भी वहीं से निकला, पहाड़ को क्वाफ बोलते थे। मछली को नून कहते थे, और उन्हीं के मुहावरे को अल्लाह ने कुरान में खुद भी इस्तेमाल किया मछली के लिए। तो ये मुकत्तिआत अहले अरब में लिसानी तौर पे राज थे, इसलिए जब कुरान के मुकत्तिआत सुनते थे तो चौंक उठते थे, और ना चाहते हुए काफी हिस्सा कुरान का उन्हें सुनना पड़ जाता था कि पहले ये मुकत्तिआत हैं और फिर अब क्या कह रहे हैं। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम मासूम की तफसीर बयान करें कि आप क्या फरमाते हैं अलिफ लाम मीम या अलिफ लाम रा। हजरत फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम एक सरबस्ता राज है। पहली बात कि ये एक राज है। हर हर्फ मुकत्ते, तमाम मुकत्तिआत इमाम फरमाते हैं अल्लाह का एक छुपा हुआ राज है। पहला पॉइंट। दूसरा, इमाम फरमाते हैं कि इशाराती पैगाम, एक राज भी है और एक इशारा भी है। राज का मफहूम और है, इशारे का मफहूम और है। राज भी है, ये हरूफ मुकत्तिआत राज भी हैं और इशारा भी हैं। और किसके माबैन इशारा है और किसके माबैन राज हैं? तो इमाम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के माबैन। और अल्लाह ने, इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने खुद चाहा कि इन दोनों के अलावा कोई और इस रम्ज और इस इशारा से वाकिफ ना हो सके। अच्छा, अब वारिसाने रसूल का मुकाम क्या है? क्योंकि हम तो इस चीज पे ईमान रखते हैं कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद, ये भी पैगंबर का फरमान। तो यकीनन जो वारिसाने पैगंबर हैं
जिस तरह वो दुरूद में पैगंबर के साथ हैं, इसी तरह हमराज होने में भी वो पैगंबर के साथ। भाई जैसे दुरूद में जाहिरी आयत क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, किस पर? इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी। नबी का लफ्ज है, मगर उस नबी में अलिफ लाम जिनसी की वजह से आले मोहम्मद शामिल है कि जो जो फजाइल और औसाफ में उन जैसा है वो नबी में आ जाए। इसी तरह यहाँ भी जो राज अल्लाह और रसूल के माबैन है, जो जो उस मेयार पर है वो वहां आ जाएगा। उस मेयार सिद्क पर है, उस मेयार इस्मत पर है, उस मुकाम इस्तफा पर है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए वारिसान रसूल राज में शरीक हैं, वो रसूल से जुदा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसों को वारिस रसूल मानो कि जो अल्लाह की तरफ से ऐसे हों कि रसूल के हर राज के शरीक हों। वही आए तो वही का राज जानते हो, मुकत्तियात आए हो तो मुकत्तियात का राज जानते हैं। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कलाम मासूम से हटकर इन हुरूफ की तौजीहात बयान करने लगे, नहीं मैं बताता हूँ अलिफ लाम से क्या मुराद है, अलिफ लाम रा से मुराद क्या है, तो यकीनन तफसीर बिल राय होगी। कुछ मुफस्सरीन ने लिखा है कि और शायद उनके पास कोई रेफरेंस हो कि अनल्लाहु आलम, इसका मतलब है अलिफ लाम मीम। अनल्लाहु आलम, अना अल्लाह आलम। कुछ ने कहा अलिफ लाम रा का मतलब है अनल्लाहु अरा, कि अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह हूं जो सब कुछ देख रहा हूं। मगर ये भी इस पर कोई मुसद्दिका हदीस नहीं मिल सकती। मासूमीन ने फरमाया कि कुरान के 70 बातें। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत बात कहने दूंगा, 70 बातें फरमाए और दूसरी तरफ फरमाया कि जो बातनी राज हैं, ऐसे तो हर आयत में राज हैं, मगर मुकत्तियात तो ऐसा राज है कि तर्जमा करने वाली पूरी दुनिया भी अगर बैठ जाए तो इनका राज नहीं समझ सकती। सुभान अल्लाह। यानी दूसरी आयतों का तो कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से तावीलात बयान करके कुरान का तर्जमे में रुख मोड़ दिया, अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश की और कर रहे हैं। लेकिन अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, ये जो मुकत्तियात हैं, इन पर कोई काविश अभी तक कामयाब इसलिए नहीं हो सकी कि बुनियादी तौर पे रूट सी किसी के पास नहीं है कि वो अल्लाह के हमराज होने का दावा कर दे। सबको मानना पड़ता है कि ये अल्लाह के राज हैं, और मासूम ने, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मोहर लगा दी कि अल्लाह के राज भी हैं और अल्लाह के इशारे भी हैं, मगर किसके माबैन? अल्लाह और पैगंबर के माबैन। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि इन मुकत्तियात के जरिया, यानी एक और राज का कुछ हिस्सा मासूमीन ने चाहा, यानी दरवाजा इल्म है ना, तो राज को राज भी रहने देगा, मगर उसका ऐसा हिस्सा जरूर पहुंचा देगा अहले फिक्र तक कि वो अपने आप को 100% अंधेरे में मत महसूस करें। तो मासूम अलैहिस्सलाम ने वहां क्या फरमाया? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इन मुकत्तियात में अल्लाह ने कुछ जो राज रखे हैं वो ये हैं कि मुख्तलिफ आइम्मा अहल बैत, मासूमीन के ज़माना इमामत के हालात और उम्मतों के किरदार पर मबनी कुछ वाक़यात अल्लाह ने हरूफ मुकत्तियात में छुपा दिए हैं, जो सिर्फ हुज्जज इलाहिया पर मुंकशिफ होते हैं। यानी अल्लाह की हुज्जतें अब हम नहीं समझते, मगर कोई का कोई सिलसिला आए तो मासूम बता सकते हैं कि इसमें फला साल और फला अहद इमामत के लोगों का ये तज़किरा है, फला इमाम के इन इम्तहानात का तज़किरा है, फला इमाम के इन फजाइल का तज़किरा है। तो ये सारा सिलसिला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के इस बयान में। अच्छा, 70 बातिन। और देखने की बात यह है कि अगर आप काउंट करें, और ये बहुत अहम नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जब मुतालिया कर रहा था तो ये नुक्ता मान उस वारगाह से मेरे ज़हन में है, और मैं तफसीर रिवायत नहीं कर रहा, मैं आपको दावत फिक्र दे रहा। मासूम ने कहा 70 बातें। ये 70 जो है 72, 70, 74,
73 یہ پوری جو لائن ہے یہ عربی میں محاورے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے، چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں اس لیے ہمارے لیے 70 کا مطلب صرف 70 ہوتا ہے، 72 کا مطلب ہم صرف 72 لیتے ہیں. حالانکہ کربلا میں جب 72 شہداء کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی تعداد 100 سے اوپر ہے، لیکن ان کے قلیل ہونے کو سمجھانے کے لیے کہ وہ بہت کثرت میں نہیں تھے مگر چند لوگوں سے زیادہ بھی تھے، اس کے لیے محاورہ آ گیا 72 70. حضور نے فرمایا میری امت کے فرقے ہو جائیں گے 72 73. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کاؤنٹ کر کے اب تو فرقے بہت زیادہ ہو چکے، تجاوز کر چکے. تو کیا پیغمبر نے نعوذ باللہ لیس کاؤنٹ کیا تھا؟ نہیں، محاورے میں بتایا تھا کہ وہ کثرت میں ہوں. ایک دین سے کئی دین بنا دیں گے فرقے، اور ان میں 72 گمراہ ہیں اور ایک جنتی. یہ حضور کی حدیث. سبحان. اس طرح 40 کا عدد بھی محاورے میں یوز ہوتا ہے. ہمارے یہاں کون سا محاورہ ہے یاد کیجئے؟ 20 لوگ آئے تھے، کیا وہ 20 لوگ ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. ہر زبان اپنے اعداد کو محاوروں میں استعمال کرتی ہے، ان کا اپنا اپنا سٹائل ہے. اور جو زبان کو سمجھتے ہیں وہ 20 کو 20 نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ کافی زیادہ لوگ تھے، ایٹ لیسٹ 20 سے زیادہ ہونے چاہیے جب آپ 20 کہیں. تو یہ ایک تصور ہے کثرت کو بتانے کا اور کہیں قلت کو سمجھانے کا، تو محاورے استعمال ہوتے. تو قرآن حکیم نے معصوم نے فرمایا کہ 70 باطن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کئی ہیں جو قریب 70 ہیں، مگر عدد میں لازم نہیں ہے کہ 70 کے بعد باطن ختم ہو جائے. واہ سبحان. یہ بات سمجھ رہے؟ اب آئیے، یہ جو میں نے اتنے آپ کے سامنے کاؤنٹ کیے، اتنے سوروں میں یہ جو آئے ہیں حروف مقطعات، ان کی تعداد کیا ہے؟ تو حضور اگر آپ کاؤنٹ کریں تو تعداد ہے مقطعات کی 74 74. سارے جمع کریں. سبحان اللہ. تو اگر آپ باقی آیتوں کے باطن پر نہ بھی غور کر سکیں تو وہ بواطن کے جن کو نہ محکم آیت کے طور پہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ متشابہ کے طور پہ سمجھ سکتا ہے، صرف معصوم سمجھ سکتا ہے، تو وہ 74 باطن کم از کم حروف مقطعات میں تو ہیں. اور جو الف لام را ایک سورہ میں آیا وہاں اس کا مقصود اور ہے، دوسرے مقام پہ اگر وہی الف لام را آیا ہے تو وہاں اس کا مفہوم اور ہے. اللہ بلا سبب بے شک کائناتی کتاب میں لفظوں کو ریپیٹ نہیں کرتا، اس کے پاس قلت نہیں ہے. بے شک. الف لام میم اگر ایک مقام پر ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، دوسرے مقام پر ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اس لیے کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ معصومین نے کہیں ایک سائل سے جب گفتگو کی تو ایک نقطہ بیان کیا، اور دوسرے سے جب گفتگو کی تو اسی آیت دوسرا نقطہ بیان کیا. اب تو یہ نہ سمجھے کہ معصومین کے مابین اتفاق رائے نہیں تھا، نعوذ باللہ نہیں، چونکہ بواطن اتنے ہیں کہ جو سائل جو بتانے کا اہل تھا اس کو اس کے مطابق باطن بتایا. یہ راز تھا. اب الف لام میم 74 اور 70 باطن، کم سے کم اور کسی باطن کو کوئی نہ بھی مانے تو یہ وہ بواطن ہیں قرآن کے، وہ بواطن ہیں کہ ان کی روح سے بھی 70 باطن ماننا ہر مومن پہ واجب ہو جائے. جبکہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے 70 باطن، اور 70 میں یہاں بھی وہی مراد ہے جو محاوراتی ہے. اچھا اب آگے چلیے. یہ قرآن حکیم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی تشریح سن لیجیے الف لام میم کی، یعنی جتنا مناسب سمجھا اس راز کا اشارہ بتا دیا. فرمایا کہ الف لام میم اللہ کے اسم اعظم کے حروف میں سے ایک حرف ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسماء اسم اعظم، اسم اعظم کے حروف میں سے الف لام میم کو بطور ایک حرف مولا نے بیان کیا کہ یہ ایک حرف ہے. قرآن میں ایسے اور بھی حروف ہیں. امام فرما رہے ہیں
जिन्हें यह नबी पहचानता है या इमाम। अब इमाम ने फरमाया कि जब हम कोई नबी या इमाम इन हुरूफ को मिलाकर, यानी अलिफ लाम मीम को किसी और हर्फ से मिलाकर मुरक्कब करके दुआ मांगता है तो दुआ में मोजज़ा और इस्तजाबत पैदा होती है। सुभान अल्लाह। ये उसका एक सिर्री पहलू है और रूहानी पहलू है कि ये। और आप देखें कि मसलन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, अब चूंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम हमारे छठे इमाम फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह के इसमें आजम का एक हर्फ होता है। अब आइए हमारे पहले इमाम के अमल को देखें। आप आइमा की दुआओं में जाइए, अमीरुल मोमिनीन की और भी दुआएं हैं, लेकिन मैं 2 मिसालें अर्ज करूं। ये अल्लाह के अस्मा हैं, ये जुमला पहला इमाम का कि ये अल्लाह के अस्मा हैं और इसमें आजम के हुरूफ भी हैं। ये 2 मुख्तलिफ जिहात हैं, खुद भी इसम है और हुरूफ का मजमुआ भी है, एक हर्फ कहलाता है और फिर दूसरे से मिलके मुरक्कब हो जाता है और इसमें आजम कमाल तक पहुंचता है, अपनी तकमील पाता है। ये बात समझ रहे हैं आप दोनों चीजों को डेफिनेटली, क्योंकि आपके चेहरों पे जो हैरानी हो वो अगर दूर होगी तो मैं समझूंगा कि मेरी बात पहुंच गई। अब इसकी दलील क्या है? अमीरुल मोमिनीन की दुआओं में कई मुकामात ऐसे हैं कि आपने अल्लाह को पुकारा है हरूफ मुकत्तआत से। मसलन एक दुआ में है या काफ हा या ऐन स्वाद। ये बात नरेट कर रहे छठा इमाम, दलील पेश कर रहे पहला इमाम। आप देखिए सदाकत की शान क्या है। जिस कदम पर रुक के देखोगे, चाहे माजी में देखोगे चाहे मुस्तकबिल में देखोगे, उनके माबैन तफावत नहीं होगा। दुआ मांग कर गए हैं अमीरुल मोमिनीन, राज नहीं बताया, राज छठा बता रहा है कि अल्लाह की अस्मा से ताल्लुक है। इसलिए या काफ हा या ऐन स्वाद। एक दुआ में मौला की दुआ शुरू होती है या यानी निदा दी, या हामीम ऐन सीन काफ। सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह को इस तरह से पुकारा। अच्छा, इनमें एक याद रखिए कि ये सारे हरूफ मुकद्दस सिर्फ अल्लाह के नाम नहीं है, इनमें पैगंबर और मासूमीन के नाम भी है। त्वाहा यासीन ये भी मुकद्दस है। सलामुन अला आले यासीन कुरान की आयत है। आले मोहम्मद का भी जिक्र है मुकद्दस की सूरत में और साहिब यासीन का भी जिक्र है मुकद्दस की सूरत में। अब आइए एक जुमला और आखिर में मैं वो रिवायत अर्ज कर दूं, इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत। लेकिन पहले ये जुमला तफसीरी, ये राज जो है कि मुकत्तआत कुरान हकीम के मैंने अर्ज किया कि 74 हैं। अगर इनके मुकर्ररात को हज़फ कर दिया जाए, यानी अलिफ लाम मीम कई बार यूज हुआ, अलिफ लाम रा कई जगह पे आया कुरान में, अलिफ लाम मीम रा किसी मुकाम पे आया, कहीं यासीन आया, कहीं हा मीम आया, कहीं ऐन सीन क़ाफ। इनमें कुछ रेपिटेशंस है, यानी कई बार अलिफ लाम मीम का आना, कई बार अलिफ लाम रा। इनको अगर आप मुकर्ररात इसे कहते हैं, रेपिटेशन को अरबी में मुकर्ररात, जैसे आप कहते हैं मुकर्रर, ये अरबी बोलते हैं आप, मुकर्रर फरमाएं, ये लफ्ज अरबी से है। तकरार किसे फिर पढ़िए, तकरार से है मुकर्रर। तो जहां तकरार है अगर उनको आप काउंट करके एक एक कर दें तो इनका जो मुखफ़फ़ बनेगा, ये मुकर्ररात हज़फ कर दिए जाएं तो तादाद मुकत्तआत की 14 बनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यानी अब ये मुकत्तआत की अभी तादाद बता रहा हूं। मुकत्तआत को अगर हज़फ किया जाए उनके मुकर्ररात को, तो मुकत्तआत की असल तादाद, असल शेप्स कितनी है? 14 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज किया 74 बवातिन। अच्छा, अब ये जो 14 बने, मसलन अब वो 14 कौन कौन से? अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या ऐन स्वाद,
त्वा हा त्वा सीन मीम त्वा सीन यासीन स्वाद हा मीम एन सीन क़ाफ क़ाफ नून, ये 14 बनते हैं। इतना वक्त नहीं है कि मैं गिनती भी साथ करूं और बताऊं, लेकिन एतमाद यकीनन आप कर रहे हैं, बाद में आप सुनेंगे, रिपीट करेंगे, तो ये 14 निकले, 14 मुकद्दर। इनके मुकर्ररात गिरा दिए गए, हज़फ कर दिए गए, 14 निकले। अब इनमें फिर अहले इल्म ने, अहले अदब ने, जो कुरान में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, उन्होंने इस पर काम किया कि मुकर्ररात को हज़फ करें तो मुकत्तआत 14 बनते हैं। माशाअल्लाह। मुकर्रर हो के कितने बन जाते हैं? 70। सुभान अल्लाह। अब अगर मुकर्ररात हज़फ किया तो 14 जो हमारे पास मुकत्तआत आए, अगर इन्हें भी मजीद मुख्तसर करें और वो हुरूफ निकाल दें जो बार बार आए, मसलन मीम अलिफ लाम मीम में भी आया और अलिफ लाम मीम स्वाद में भी आया और अलिफ लाम मीम रा में भी आया और तासीन मीम में भी आया, हा मीम में भी आया, तो मीम को एक बार ले लें, अलिफ को एक बार लें, लाम को एक बार लें। तो अगर इन 14 को फर्दर आप तलखीस कर दें, इनकी प्योरिफिकेशन करें, तो 14 के बाद जो हुरूफ अल्फाबेट्स हज्जी जो आते हैं वो भी आखिर में 14 ही बनते। पूरे कुरान के मुकत्तआत का खुलासा 14 मुकत्तआत और 14 मुकत्तआत का खुलासा 14 हर्फ। अब जब 14 हर्फ बने, मसलन अलिफ लाम मीम स्वाद रे काफ हा या ऐन तोए सीन हे क़ाफ नून, ये हैं 14 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इन 14 हर्फों को अब अहले इल्म ने सदियों से ये कोशिश करी कि ये जो हर्फ हैं इनसे कोई बामुआनी जुमला बनता है, इन हरूफ को मिलाएं, तो उन्होंने इसके सैकड़ों, बल्कि कहते हैं कि लाखों की तादाद में जुमले बने। क्योंकि हमने उसमें काम नहीं करके देखा, इसलिए हम यही कहेंगे कि कहते हैं, मगर ऐसा है क्योंकि साहिबान तफसीर ने ये नकल किया है। और शायद मेरे ज़हन में आता है कि अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने इस पे कुछ काम किया और उन्होंने बताया कि लाखों की तादाद में फिक्रे बनते हैं, मगर दो फिक्रा बनता है, फिक्रे तो बन जाएंगे, लफ्ज बन जाएंगे, मगर किसी जुमले और फिक्रे का कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब यानी ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जुमले बना रहे हैं। मसलन एक निजामुद्दीन नेशापुरी, उन्होंने एक तफसीर में लिखा कि इससे एक फिक्रा और भी बनता है। ये और भी क्यों कहना पड़ा कि एक फिक्रा वाहिद है जो बामुआनी बनता है, वो मैं बाद में एक ही बामुआनी फिक्रा बनता है, मगर जिनको उस फिक्रे से तकलीफ पहुंची तो आज तक मसरूफ है कि नहीं कोई और जुमला भी बनाओ। तो उन्होंने एक बहुत तीर मारा और कहा कि एक जुमला बनता है बामुआनी, और वो है सहा तरीका का मासुन्ना। बड़ी मेहनत की और कहा कि नहीं ये जुमला भी बनता है। अब वो जुमला क्या है जिसने तकलीफ दी और इतनी मेहनत करवाई, वो जुमला मैं अर्ज करता हूँ। इस जुमला को सुनने का सहा तरीका का मासुन्ना, जिसका मफहूम है कि तुम्हारा रास्ता सुन्नत के साथ सही है। क्या मतलब है इसका? सहा तरीका का, तुम्हारा तरीका जो है, तरीका यानी रास्ता, वो किसके साथ सही है? मासुन्ना। मगर ये जुमला इस वजह से बेमुआनी है कि ये उलमा ने मेहनत से बनाया, मगर वो तरीका का में काफ का जमीर कौन है, किससे बात हो रही है? क्योंकि कुरान की आयत तो है नहीं कि इंसान समझे कि बराह रास्त मुझी से कहा जा रहा है। आप समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इन्नका, पिछली आयत से मफहूम का पता चल जाएगा कि नबी से कह रहा है या उम्मत से कह रहा है। बेशक ये का जो है, ये जुमला कुरान का नहीं है, ये तो उलमा की मेहनत है। तो सहा तरीका का, किसका तरीका?
یعنی جملہ معانی دیتا دیتا اپنے ادھورے پن کو بھی ظاہر کر رہا ہے. معانی ہے مگر ادھورا معانی. تو ایک ایسا جملہ کہ جس کے اندر کوئی ادھورا پن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ تمام علماء نے اور بلکہ نیشا پوری صاحب نے بھی یہ لکھا کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی فکرہ بامعانی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بامعانی یہ ہے مگر ساتھ یہ بھی تو ایک فکرہ ہے. یعنی ایک علی اکیلا کہیں بھی برداشت نہیں ہوتا. واہ کیا کہنا ہے، واہ یہ واہ بھی تو ہے وہی بات یہاں بھی رہی. کیا کہنا تو وہ فکرہ کیا تھا کہ جس نے محنت کا آمادہ کیا، وہ فکرہ جو تمام صدیوں میں متفقہ فکرہ ہے، دیکھی ہے کہ صراط علی حق سبحان اللہ. مسک ہو. سبحان اللہ. اب اس میں اشتباہ نہیں ہے کہ کون کس سے کہہ رہا ہے. صراط علی کی بات ہے، علی کا راستہ حق ہے، نمسک ہو، بس اس سے تمسک کرو. قرآن کے حروف کا اگر نچوڑ نکالیں تو نچوڑ ایک ہی بامعانی جملہ دیتے ہیں کہ علی کا راستہ حق ہے، صراط علی حق نمسک ہو، بس اس سے تمسک کرو. اور اب میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ضد کرے کہ یہ صحا طریقہ کا سننا بھی لے کر آئے اور اس پر جم جائے، تو وہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ یا علی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. تو صحا طریقہ کا سننا جو ہے تو وہ وہاں بھی سنت رسول اور سنت علی دونوں کو لانا پڑے گا، کیونکہ علی ہے نفس رسول بنفس قرآن. سبحان اللہ. اور سنت رسول کو پیش کرنے کے لیے بھی باقی ساری امت اور باقی تمام طبقات سے بہتر نمائندہ سنت کا کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب، جو گھر کی سنت بھی بتا سکتا ہے، مسجد کی سنت بھی بتا سکتا ہے، میدان کی سنت بھی بتا سکتا ہے. جب سب بھاگ جاتے ہیں میدان میں تو تنہا رسول کی سنت کیا تھی وہ بھی صرف وہی بتا سکتا ہے جو پہلو میں موجود ہے. کئی لوگ تو نہ گھر میں ہیں، نہ خلوت میں ہیں، نہ میدان میں ساتھ ہیں، چونکہ فرار. تو جو ہر وقت رسول کے ساتھ ہے، کیوں نہ ہم اسی سے سنت رسول پوچھیں. بے شک بے شک بے شک. تو سنت والی بات بھی جملہ بھی اگر کوئی ضد کرے تو اس جملے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہاں بھی سنت کا وسیلہ علی ابن ابی طالب ہے، ان سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں. لیکن براہ راست بہتر ہے تسلیم کر لیا جائے، انڈائریکٹلی ماننے کی بجائے براہ راست کیوں نہیں مانتے؟ صراط علی حق مسک ہو، کہ علی ہی کا راستہ حق ہے، بس اس سے تمسک کرو. جب اس کا انجام علماء اہل بیت نے تفسیر کے تعویلی جملوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک مفہوم آل محمد بھی ہے، الف لام میم. سبحان اللہ. آل اور محمد کا ایک مفہوم آل محمد بھی. اچھا اب بات پھر رائے ہو جاتی، اگر رائے کو پیغمبر کا دوسرا فرمان آ کے اپنی پناہ میں لے لے تو وہ رائے نہیں رہے گی، کلام معصوم بن جائے گا. یعنی میں ایک جملہ کہوں، بے شک براہ راست وہ جملہ تو آپ کو حدیث میں نہ ملے، مگر ایک اور ایسی حدیث ملے کہ جس میں یہ جملہ 100% سما سکتا ہو معانی کے لحاظ سے، تو پھر یہ قول تفسیر بالرائے نہیں رہے گا. یہ بات کیا میں آپ تک پہنچا پایا؟ سب کم وقت ہے، اور انشاءاللہ وہ واقعہ میں اگلی مجلس پہ چھوڑتا ہوں، اگلی نشست پر. جو میں نے روایت کے طور پہ سنانا تھا وہ الف لام میم سے تعلق رکھتا ہے اور علم امیر المومنین کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، مگر انشاءاللہ وہ واقعہ پھر بیان ہوگا. لیکن یہ جملہ سن لیجیے، یہ تتمہ ہے آج الف لام میم کو سمجھنے کا. کہ الف لام میم سے ہم نے کہا کہ اس سے مراد علماء ربانیین نے لکھا کہ اس سے مراد آل محمد ہیں. اچھا آپ کہیں گے کہ اچھا رسول اللہ کی حدیث کہاں ہے؟
मुमकिन है कुछ लोगों ने कहा कि रिवायत भी मौजूद है, लेकिन चूंकि मेरी निगाह से नहीं गुजरी इसलिए मैं इसको दूसरे तरीका से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर मुझे हदीस मिल जाए तो मुझे बहस की जरूरत नहीं, मैं कहूँगा हदीस मौजूद है कि पैगंबर ने कहा कि अलिफ लाम मीम से आले मोहम्मद मुराद है, तो फिर तो ये हतमन है, इसके बाद किसी और बयान की गुंजाइश ही नहीं रहती। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर सिर्फ इस्तदलाली गुफ्तगू के तौर पे उलमा मकतब आले मोहम्मद के इस नुक्ता पर पहुंचे कि इसके राजों में एक राज ये भी है कि ये अल्लाह ने यहाँ आले मोहम्मद को अलिफ लाम मीम कहा, तो इसकी दलील क्या है कि ये तफसीर पर राय न रहे। तो मैं एक वो चीज भी आपको बता रहा हूं कि कौन किस तरह से जब कुछ कहता है तो वो बिर राय नहीं रहता, वो भी कलाम मासूम के साए में तो जुमला पनाह ले लेता है। बेशक। तो वो तरीका क्या है? वो ये है कि इस कलाम को और कलाम से मिलाइए, इस नजरिया को कि अलिफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद है। देखिए आयत रसूल में जो दूसरा कलाम रसूल है उसको देखें, या कुरान हकीम के अहकाम को देखें, तो पैगंबर ने जो सबसे अहम हदीस वो होती है, किसी की सबसे अहम स्टेटमेंट वो होती है जो डेथ स्टेटमेंट हो। हजूर की जिंदगी का हर जुमला बराबर का अहम है, एक जुमला भी रायगा नहीं बोला पैगंबर ने। मगर अगर इन जुमलों में हदीसों का तकाबुल करे कि सबसे अहम हदीस कौन है, तो फिर वो हदीस सबसे अहम हो जाएगी कि जो वसीयत में छोड़ी, क्योंकि वसीयत में वो बात कही जाती है जिसको कयामत तक बाकी रहना हो, और जो पैगाम की गारंटी होती है, जमानत होती है कि पैगाम अगर इस वसीयत के मुताबिक उस पे अमल ना हुआ इस पैगाम पर, तो वो चीज अपनी असलियत को खो देगी। तो रसूल ने अपनी, अब ये बहुत अहम, अब आप वक्त मत देखें, वक्त हो चुका है, चूंकि 5 मिनट 8 मिनट लेट शुरू हुआ, इसलिए मैं 4 मिनट और लेके बात खत्म कर दूं। यही वक्त में और ये जुमला आपके लिए समझना जरूरी है। अलिफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद चैलेंज है आपके लिए बहुत बड़ी एनर्जी है ये जुमला, लेकिन इसकी दलील भी तो होनी चाहिए ना। आप कहेंगे कि लोग कहेंगे कि ले आइए हदीस, मुमकिन है हदीस हो, मैंने पहले अर्ज किया है कि अभी जाहिर है मेरी निगाह से चूंकि नहीं गुजरी इसलिए मैं यहाँ दावा नहीं कर रहा, मगर कुछ लोगों ने इसको बयान कर दिया है कि पैगंबर ने कहा, लेकिन मैंने चूंकि अपने जो मेरे पास महदूद मसादिर हैं वहां मैंने इस हदीस को तफसीर में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मेरा ईमान है कि आले मोहम्मद इस राज में हैं, आले मोहम्मद अलिफ लाम मीम में हैं, मगर चूंकि हदीस नहीं, तो अब मेरे पास इसको हदीस समझने का दूसरा मेयार क्या है? तो पैगंबर के दूसरे फरामीन में कोई हदीस ले आइए, मगर मैं तो वो हदीस ला रहा हूँ जो सारी हदीसों से अफजल हदीस है, और वो है वसीयत वाली हदीस। मैं और हदीसें भी ला सकता हूँ, मगर मैं एक किफायत कर रही है वसीयत की हदीस। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, सुभान अल्लाह, किताबुल्लाह व इतरती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी, सुभान अल्लाह, व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलल हौज। मैं बेशक तुम्हारे माबैन, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे माबैन क्या छोड़ के जा रहा हूं? 2 भारी चीजें, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत आले मोहम्मद। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, अगर तुमने मा इन तमस्सक्तुम बिह नहीं कहा कि तुमने अगर एक से राबिता रखा, 2 का जुमला बोला, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा तस्निया बोला कि अगर तुमने इन दोनों से बराबर का तमस्सुक रखा, लन तज़िल्लु बादी, तो मेरे बाद फिर गुमराह नहीं होगे, वो हिदायत पे रहना है, तो इन दोनों से बराबर का तमस्सुक तुम्हें रखना ही होगा। यही मतलब है ना? सुभान अल्लाह, बिल्कुल बेशक। और ये कभी वइन्नहुमा लन यफ्तरिका, और ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हत्ता यरद अलल हौज अलैयल हौज,
حتیٰ کہ یہ हौज पर मेरे सामने जब कयामत का दिन होगा तो कुरान और अहले बैत दोनों इकट्ठे मिलकर हौज पर मेरे सामने आए। सुभान अल्लाह। कुरान भी बताएगा कि इस उम्मत ने क्या किया और आले मोहम्मद भी बताएंगे, नतीजा दोनों के बयान से निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हदीस हदीस है। यहाँ भी कईयों ने इतरत को उम्मत सुन्नत के लफ्ज से बदलने की कोशिश की, मगर सुन्नत यहाँ भी लाएंगे। सुन्नत कहते हैं कि रसूल का तरीका, तो रसूल का तरीका किससे पूछें? जो सबसे मोतबर है वो आले मोहम्मद से बेहतर कोई नहीं। तो सुन्नत का लफ्ज भी इनडायरेक्टली दरवाजे अली पर ही पहुंचे, दरवाजे फातिमा पर ही पहुंचे। सुभान अल्लाह। आप सुन्नत ले आए, फिर भी सुन्नत भी तो किसी से पूछनी पड़ेगी ना। तो मैं सुन्नत किसी रहमतुल्लाह अलैह से क्यों पूछूं, किसी अल्लाह से क्यों पूछूं जिसके लिए मैं अल्लाह पे जोर डाल रहा हूँ या अल्लाह उस पर राजी हो जा। मैं उससे क्यों ना पूछूं जिसे अल्लाह अलैहिस्सलाम कह रहा है कि मेरा तुझ पर सलाम है। मैं मुहताज दुआ के पास क्यों जाऊं, मैं वसीला दुआ के पास क्यों ना जाऊं? बेशक। तो मैं वसीला दुआ को वसीला सुन्नत भी समझता हूँ। जो दरूद में शामिल है वो सुन्नत में कैसे रसूल से जुदा हो गया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुन्नत भी पहले, जिस पर दरूद में जो मोहम्मद के साथ हैं वही सुन्नत में मोहम्मद के साथ हैं। ये अकली चीजें हैं, ये अकली चीजें हैं। ये किसी फिरके की गुफ्तगू नहीं है। अक्ल सालिम हो तो दरूद ही काफी है दीन मुबीन को समझने के लिए। कहाँ कहाँ पैगंबर के साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, नमाज में ये साथ हैं, इबादत में साथ हैं, दुआ में साथ हैं, वसीला में साथ हैं, महशर में साथ हैं, कब्र में साथ हैं, बरज़ख में साथ। बेशक। अब बस आखिरी जुमला जो कि मैंने कहा था मैं अलिफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद है, इसे साबित करूंगा रसूल ही के कलाम से। बराह रास्त कलाम नहीं मिले तो कलाम रसूल और भी तो मौजूद है, वो साबित करेगा। रसूल ने फरमाया कि कुरान और आले मोहम्मद जब दोनों हों, इतरत दोनों हों, तो हिदायत होगी। बात समझ में आ गई? जुमला ज़हन में रखिए। अब आयत पढ़ रहा हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तर्जुमा कीजिए। अलिफ लाम मीम पता चला, मतलब पता नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये बेऐब शक से पाक ला रैब किताब, ये वो है कुरान। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं। वो कौन है? कुरान। आम तर्जुमा में ये लफ्ज सिर्फ कुरान पर सादिर होता है, मगर जो अब तर्जुमा मैं समझा दूंगा फिर आपको लुत्फ भी आएगा। अलिफ लाम मीम का इशारा ज़हन में रहे, इसका मतलब है आले मोहम्मद। तो अगर हम ये माने कि ला रैब सिर्फ कुरान है और हुदल मुत्तकीन, और मुत्तकीन को हिदायत देने के लिए अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ कुरान काफी है, ये बात मैं इस तरह नहीं पढ़ना चाहता कि आप मुतवज्जो ना हो। अगर ये तर्जुमा ले लिया जाए कि इस आयत का मफहूम ये है कि हिदायत हुदल मुत्तकीन सिर्फ कुरान है, तो फिर तो कुरान काफी कहने वाले सच्चे हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब हल क्या है? यहां अल्लाह ने कह दिया हुदल मुत्तकीन ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, तो अब बात तब समझ में आएगी कि जब अलिफ लाम मीम को आले मोहम्मद कहकर आप ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कहेंगे, तो मतलब ये होगा न आले मोहम्मद में रैब है न किताब में रैब है, और मुत्तकीन को हिदायत तब मिलेगी जब इन दोनों से तमस्सुक होगा। और अगर ये कौल ये हदीस न मिले तो आ जाइए हदीस सकलैन यही कुछ तो कह रही है। तक ये दोनों तुम्हारे तमस्सुक में ना आए उस वक्त तक तुम्हारी हिदायत हो नहीं सकती। अगर एक का दामन छोड़ दोगे तो तुम तज़िल्लु की मंजिल पे आ जाओगे, गुमराह हो जाओगे। लन तज़िल्लु बादी के लिए कुरान को भी रखना, अहले बैत को भी रखना, तो मानना पड़ेगा रसूल का जो आखिरी फरमान है वो कुरान के मिजाज के मुखालिफ नहीं हो सकता।
आपको मानना पड़ेगा। कुरान ने भी रम्ज की जुबान में यही कुछ कहा है कि आले मोहम्मद और कुरान ज़ालिकल, ये दोनों, ये जो ला रैब फी है, ये सिर्फ किताब के लिए नहीं है, अलिफ लाम मीम भी ला रैब है, और अल किताब भी ला रैब है, ज़ालिकल किताब भी ला रैब है, ये दोनों ला रैब है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत देते हैं, दोनों मिलकर हिदायत देते हैं। ये जो मुत्तकीन होते हैं वो इन्हीं दो से हिदायत पाते हैं। बारह सही को अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमा, कबूल फरमा। लफ्ज़ें इस महीना में और जिंदगी भर की जो खताएं उन्हें मुआफ फरमा, में इजाफा फरमा। मेरा चूंकि 1 घंटा अब पूरा हुआ है तो मैंने ऐन वक्त पे गुफ्तगू को रोक दिया है ताकि शिकायत ना आए कि वक्त का तसर्रुफ हुआ ज्यादा वक्त का। अब जो बाकी 10 मिनट हैं वो सवालात के लिए हैं, तो मैं मुंतजिर हूँ अगर कोई सवाल करना चाहे। मोमिन कराम, अभी असल में टाइम थोड़ा सा आज हो गया, तो इसलिए अब हम ये कि सवालात अगर कोई करना चाहें तो अभी एक सजेशन है कि अगर सवालात को हम किसी और दिन वीकेंड के किसी डे पे अगर रख लें, अगर आप मोमिनीन अगर अभी बता दें कि अगर ऐसा रहे तो क्या ख्याल है आपका, हम इस तरह भी कर सकते हैं। और तो अगर कोई आप बताइए, अगर अभी भी करना चाहते हैं तो अभी भी हाँ अभी भी करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह कोई कर लें, कोई मसला नहीं है। चलता है ना, 15 मिनट तक तो होता है हमारा टाइम। जी जी, कोई सवाल अगर है तो बिल्कुल आप हाथ रेज़ करें। 7 मिनट हैं और ये जो भी अगर सवाल करना चाहे तो वो प्लीज अपना हाथ जो है रेस करे, और उस पर के सवाल वो डायरेक्ट पूछ सकता है किबला से। अस्सलाम वालेकुम वरन साहब। किबला में ख्याल में हैदर अली भाई आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी हैदर अली भाई। वरन साहब, आपकी लास्ट गुफ्तगू से सवाल है जनाब आदम पे, क्योंकि टाइम नहीं बचा था लास्ट टाइम, तो मैं इस नशिस्त में कर रहा हूँ। जब आदम के लिए हमारा मकतब तशय्युअ का एक कॉन्सेप्ट है कि तर्क औला किया जी, लेकिन इसी बकरा के हवाले से ही है, क्योंकि हम बकरा की तफसीर पढ़ रहे हैं। बकरा में आदम का तस्करा हुआ, और मैं शॉर्ट रखूंगा, सारी आयत और तफसीर नहीं उसमें जा रहा तर्जुमा में। तो उन्होंने कहा इस दरख्त के पास नहीं जाना वरना वो अल्फाज बड़े मुश्किल से थे, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, मतलब जालिमीन में से हो जाओगे। यही जिक्र जब आराफ में हुआ तो थोड़ा और बढ़ के हुआ कि उनके शर्मगाहें जाहिर हो गई वगैरह। फिर जब ताहा में आए तो ताहा में तो सीधा सीधा कह दिया कि खा ही लिया फल, और जब स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया वासा आदम रब्बहु फगवा, कि आदम डिसओबेड हिज लॉर्ड। तो ऐसा क्यों है कि हम इसे तर्क औला की बास्केट में डालते हैं? लगता तो ऐसा है कि ये सीधा सीधा गुनाह है। इसका जवाब सिंपल ये है कि ये तर्क औला और गुनाह में दोनों को, यानी आपके नजदीक चूंकि लफ्ज़ जुल्म आया है तो जुल्म एक दलील देता है कि नहीं वो कुछ सीरियस बात थी। एक और चीज बस ऐड कर रहा हूँ, वासा आदम रब्बहु फगवा भी आया है जुल्म के अलावा भी। जी, वो बिल्कुल वो आया है, लेकिन बात वही है कि किसके मेयार के मुताबिक कौन सी चीज जुल्म बन जाती है, किसका अदल बहुत बुलंद होगा या जिससे तवक्कुआत अदल बहुत बुलंद होंगी, उसकी एक बातनी लग्जिश भी जुल्म में शुमार होती है। वो उसके मेयार से जुल्म है। हमारे से अगर उसे कंपेयर किया जाएगा तो वो जुल्म नहीं है, वो तर्क औला है। तो अल्लाह और उनके माबैन जो ताल्लुक है, जो हसासियत है, जो कुर्बत है, उस कुर्ब के मुकाबला में वो जुल्म था, मगर हमारे गुनाहों के मुकाबला में वो गुनाह नहीं था, वो तर्क औला था। यानी हमारा गुनाह सरीही फिक्री भी गुनाह होता है और अमल में भी हम सरीहन हालत गुनाह में चले जाते, लेकिन पैगंबर ने उस गुनाह का इर्तिकाब एक हद तक किया, और हमारी निस्बत अगर हम वो करते तो हमारा कोई फरिश्ता भी उसे किताब गुनाह में न लिखता, क्योंकि हमारे लिए फरिश्तों को पहले से मालूम है कि इनकी एक बशरी हुदूद है, इनकी हद है, नेकी करने की भी एक हद है, और अल्लाह की मारिफत में भी एक हद पे जाके इनकी हद खत्म हो जाती है। नफ्स को रोकने की मंजिलों में भी एक हद पे जाके इनकी हद खत्म हो जाती है।
इसलिए जब हम कुछ करें और उस लेवल का कुछ करें, जैसे मुख्तलिफ अंबिया पर जो तर्क औला पे जो इम्तहानात आए, और इसकी मिसाल सिर्फ जनाब आदम नहीं है, हजरत याकूब से तर्क औला हुआ, जनाब यूसुफ से तर्क औला हुआ, हजरत यूनुस से तर्क औला हुआ, कई अंबिया के लिए जिक्र हुआ कि तर्क औला हुआ। और जहां जहां भी तर्क औला हुआ, अगर वो तर्क औला किसी हम जैसे से होता तो तर्क औला क्या, वो इतना सा भी जिम्रा जुल्म में न शुमार होता, काबिल मुआफी रहता हर वक्त। जैसे हमारे ज़हन में कई बार अल्लाह के लिए शक पैदा हो जाए, खुदा न खास्ता, ज़हनों में होता रहता है। 12वें इमाम के लिए आज लोग शक कर रहे हैं। अगर अमल नहीं किया उस शक पर और अकीदा नहीं बनाया तो अल्लाह उस पर आपको जहन्नम में नहीं डाल रहा, इसलिए कि आपसे उसको इतनी ज्यादा तवक्को ही नहीं है, आप छोटे छोटे ऐब से भी बच जाएं। लेकिन जिसे मासूम बनाता है, और इस्मत के भी दर्जे होते हैं, तो जिस दर्जे का मासूम बनाया था उस दर्जे का उस पर एतमाद भी है कि ये उस दर्जे तक सोच में भी और चंद कदम रोकी हुई जगह पे चलने में भी उस हद तक मुब्तला नहीं होगा। लेकिन जब उनसे वो हुआ तो अभी इर्तिकाब नहीं हुआ, मगर अल्लाह ने चूंकि उस मेयार से जो मेयार बांध रखा था परवरदिगार ने उस नबी और अपने माबैन, उस मेयार से जब कुछ नीचे आया सोच की हद तक भी, तो अल्लाह के नजदीक वो जुल्म में शुमार हो। तो ये जनाब आदम की मिसाल इसी में आती है कि आपसे जो तवक्को थी कुदरत को, उस मेयार से वो कुछ मंजिलें नीचे जब आए तो वो जुल्म कहलाया। हमारे लिए उतना नीचे आना जुल्म नहीं कहलाएगा, नबी के लिए कहलाएगा। और जब हमारे गुनाहों से उनकी गलतियों का या उनकी लग्जिशों का मुवाजना करेंगे तो हमारे मुकाबला में उसे तर्क औला कहेंगे। अल्लाह के मुकाबले में मेरा जुल्म कहीं और से शुरू होता है और एक नबी का जुल्म कहीं और से शुरू होता है। बहुत खूब। वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है क्योंकि उसके लिए कुर्बत तकर्रुब इतना बुलंद है, और इस्तफा के बाद उस मुस्तफा पे इतने, यानी जनाब आदम भी मुस्तफाओं में है ना, इन्नल्लाह मुस्तफा आदम व नूह, तो इस्तफा की मंजिल इजाजत नहीं देती कि कहीं भी लग्जिश खाएं। तो वो जो लग्जिश है उस मेयार पे जाके वो जुल्म इसलिए कहलाई कि उनके इस्तफा को ये जच नहीं रही, मुकाम इस्तफा। लेकिन हम चूंकि न मुस्तफा हैं न किसी और ऐसी रूहानी मंजिल पे हैं, हमसे जब तक गुनाह हो जाता है तब भी फौरन फरिश्ते को हुक्म न लिखो। यानी आपने कभी गौर किया, आपने गुनाह किया, मोमिन के लिए हदीस में मौजूद है कि फरिश्ते को हुक्म है फौरन न लिखना, हो सकता है भी नादिम होकर तायब हो जाए। हमारे लिए गुंजाइशें हैं इसलिए कि हमारे से परवरदिगार की तवक्कुआत वो नहीं है जो तवक्कुआत साहिबाने इस्मत अंबिया से। बेशक। तो आपको जवाब मिला या अभी इसमें कोई खाना अभी जेर बहस रहना चाहिए? बस एक चीज जो अभी भी तशनी की है वो ये कि जुल्म और मासूमियत एक जगह जमा हो सकते हैं। जी देखें, मैंने वही अर्ज किया कि जुल्म जो है, जुल्म की मंजिल क्या है, इस्मत के भी दर्जे हैं। एक वो मासूम है जो चारदा मासूम है, वो इस्मत है कि जो इस्मत कुल्लिया है, इस्मत मुतलका। जबकि बाकी हस्तियों की इस्मत के भी दर्जात हैं, जैसे अंबिया के दर्जात हैं, इस्मत के भी दर्जात हैं, जैसे मलाइका के दर्जात हैं। तो वहां भी अब जैसे अब चले अंबिया में छोड़े, फुतरस का वाकया सुन लें, किसी और फरिश्ते का वाकया कि जिसको कभी सजा मिली हो। अब हमारे यहाँ तो ये रिवायात मुस्तनद रिवायात में है ना, तो वो फुतरस भी फरिश्ता होते हुए, मासूम होते हुए, इतना उसमें नफ्स का गुरूर आना मुमकिन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दस्तरखान पे बैठे हैं, अपना भरा हुआ दस्तरखान बच्चों से, बेटों से, लड़कों से, और इतना बड़ा कुंबा, दरवाजे पे फकीर सदा देता है तो गफलत फरमा लेते हैं, महव हो जाते हैं अपने इतने बड़े कबीले में,
اور وہ خالی چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ معصوم نے کیا فرمایا کہ جناب یعقوب علیہ السلام پہ امتحان آیا کہ بیٹے اور باپ میں جو جدائی پڑی وہ ترک اولا یہ تھا کہ اللہ نے ایک سائل بھیجا اور یہ اپنے رشتوں میں اور اپنی محبتوں میں اور کنبے اور قبیلے میں اتنے محب ہو گئے کہ ایک سائل کی صدا کو اگنور کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ اب تم پہ اس قرب اور اس محبت کے رشتے میں ایسا امتحان ڈالوں گا کہ پھر آپ کی آنکھ اس محبت کو روتے روتے بینائی کھو بیٹھے گی. تو مطلب یہ اب یہ ہمارے یہاں تو کتنے بار ایسا ہوتا ہے، اور اگر ہماری پکڑ ہونے لگے تو اللہ جانے ہمارا کیا ٹھکانہ. لہٰذا اللہ نے ہمیں ایسے سینسیٹیو پوائنٹس پہ، تو وہ ان کے لیے ظلم تھا. اب بات یہ ہے کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی مقام کسی چیز کو ظلم یہ نہیں ہوتا کسی کو مار دیا جائے. قرآن کے نزدیک اور لغت کے نزدیک اور منطق کے نزدیک ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے حقیقی مقام سے ہٹا کے رکھنا، اسے ظلم کہتے ہیں. تو حقیقی مقام یہ تھا آدم کا اور یعقوب کا کہ ان سے اتنی بھی لغزش نہ ہو، جیسے ہی وہاں سے ہلے ظلم شروع ہو گیا. سبحان اللہ. تو وہ ظلم کی بھی کیٹیگری اور ڈگری ہے. ہمارے مظالم بہت حقیقی مظالم میں شمار ہوتے ہیں. ان کا ظلم جو ہے وہ فکری ہے، ان کا ظلم ہے ایک لمحے کا تغافل ہے، ایک لمحے کا جو فکر نبی پہ پردہ آ جانا ہے یا دوسری سوچ کا تصادم ہونا ہے. اللہ کو وہ تصادم بھی اچھا نہیں لگتا. اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو ساتھ کہا کہ یقین رکھتا ہوں تاکہ یہ کہیں پہ ترک اولا نہ ہو جائے. کہا میں صرف اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں یا اللہ، ورنہ مجھے پورا یقین. اگر یہ جملہ یہی چھوڑ دیتا کہ تو کیسے کرتا ہے تو جناب عزیر علیہ السلام سے بڑا مشکل امتحان ان پہ بھی آ جاتا ہے. 50 سال عزیر علیہ السلام کو یا 100 سال، وہ جو واقعہ ہے 100 سال بستی کو دیکھو یہ کیسے زندہ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں جناب عزیر علیہ السلام میں کہ گفتگو میں اور فکر میں یہ نہیں آیا. جناب ابراہیم چونکہ خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے مزاج بن انبیاء سے، مزاج کا لفظ مجبوراً بول رہا ہوں، اللہ کے یعنی اللہ کی مشیت کے زاویوں کو، حساسیت کو، بلندیوں کو چھوٹے انبیاء سے زیادہ پہچانتے ہیں. اس لیے جب ایک چیز کہ جو بظاہر تشکیک پر مبنی کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، تو ساتھ ہی کہا کہ مانتا ہوں کہ تو کر سکتا ہے مگر اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رخ بدل گیا، زاویہ بدل گیا. لیکن جناب عزیر علیہ السلام کے پاس چونکہ رخ بدلنے والا جملہ ان کی فکر میں نہیں تھا، صرف حیرت تھی. تو حیرت کو اللہ نے ایک طرح کا ان کا یعنی ترک اولا سمجھ کے ان پر امتحان ڈال دی. تو اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کون سی چیز کس کے لیے ظلم ہے. اگر میں نے یہ مثال پہلے بھی دی، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، والد آئیں 6 دوستوں کے ساتھ، آپ کا نہ اٹھنا ظلم ہے، 6 دوستوں کا نہ اٹھنا ظلم نہیں ہے. نہیں اٹھے کیا ہوا؟ کوئی فرشتہ انہیں یہاں سے پکڑ کے نہیں کہے گا کہ جب اس کے والد آئے تھے تو آپ کیوں نہیں. ٹھیک ہے ان کے شاید ثواب میں کمی ہو مگر عذاب نہیں ہوگا کہ ایک بزرگ کا احترام نہیں کیا، مگر اس پہ عذاب نہیں آ سکتا، امتحان وارد نہیں ہوگا. لیکن بیٹے پہ اسی بات پہ امتحان وارد ہو جائے گا. پتہ چلا بیٹے کا ظلم اور ہے، رشتے کے سبب، قربت کے سبب وہ چیز بیٹے کے لیے ظلم بن گئی، عام لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ. سبحان یہی اللہ. معیار ہے. وہی تقرب جو ہے اللہ کا انبیاء سے وہ تعین کرتا ہے کہ کس کا ظلم کہاں سے شروع ہو جائے. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وعجل فرجهم. بہت بہت شکریہ مومنین آپ لوگوں کا. مومنین کرام، بس ابھی سیشن ختم کرنے سے پہلے میں 2 جلدی اعلانات کرتا چلوں. کل انشاءاللہ جشن ہوگا امام حسن علیہ السلام کا، اور کل جشن بھی اسی زوم پہ اسی میٹنگ آئی ڈی پہ ہوگا.
اور اس کے ٹائمنگز ہیں 7:30 بجے. ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں کہ 8 بجے نہیں ہے یہ جشن جو ہے وہ 7:30 بجے ہے. ہمارے پاس اس میں کچھ مہمان منقبت خواہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ قبلہ مولانا سید سبطین حسنی صاحب بھی موجود ہوں گے. اور حسنی صاحب جی بالکل حسنی صاحب کروں گا جشن کی صورت میں تقریر نہیں ہوگی کل. جی شرکت فرمائیں اور جشن کو بارونق بنائیں. جی اور ویسے بھی کل حسنی صاحب آپ نے کل غالباً کہیں کسی اور پروگرام میں بھی انشاءاللہ اس میں نے بس شرکت کرنی ہے ایک اور مجلس میں. جی تو اس لیے مومنین کرام وقت کا خیال رکھیے گا، ٹائم پہ شروع ہو جائے گا جشن، کیونکہ ہمیں ٹائم پہ ختم کرنا ہوگا، قبلہ کی آگے جو ہے وہ کمٹمنٹس بھی ہیں. اور پھر انشاءاللہ اچھا، اور کل جو ہے تفسیر قرآن کا پروگرام ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکے گا، تو وہ تفسیر قرآن کا اگلا پروگرام انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ہوگا. اور اتوار کے دن ایک مجلس جو ہے منعقد کی گئی ہے کے اوپر ہی، جی اسی اتوار کو، اور وہ ہوگی 8 بجے. وہ مجلس جو ہے وہ 8 بجے ہے، اور کل کا جشن جو ہے وہ 7:30 بجے ہے، اور تفسیر اور مجلس جو ہے اتوار کو 8 بجے ہے. اور وہ مجلس جو ہے وہ قبلہ حسنی صاحب اور مرزا بھائی کے گرینڈ فادر، اور ابھی حال ہی میں جو عرفی بھائی کی والدہ کا ابھی انتقال ہوا ہے وہ، اور تمام مومنین اور مومنات ان کے حوالے سے ایک مجلس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہیں خطاب فرمائیں گے سید محبوب مہدی عابدی النجفی صاحب، جو USA سے خطاب فرمائیں گے. تو اس میں آپ تمام لوگوں سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. یہ فلائر انشاءاللہ آج ہم اس کو واٹس ایپ پہ اور انشاءاللہ اپنے فیس بک پیج کے تھرو بھی اس کو ہم لگا دیں گے. تو آپ مومنین سے گزارش ہے، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ مومنین کرام اس مجلس کا جو میٹنگ ID ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ اگر جس پہ آپ لوگ ڈیلی اور ہمارے جو اس پہ آتے ہیں پروگرامز میں اس میں آئیں گے تو شاید آپ کو یہ نہ مل سکے. تو آپ برائے مہربانی یہ ID نوٹ کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم ID کو بھی واٹس ایپ پہ اور ریپیٹ کر دیں گے. جی بالکل انشاءاللہ. اور تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ جشن کے وقت انشاءاللہ 7:30 بجے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام.